So now we'll move to the physics aspect of the discussion. And in this physics aspect, we'll be mainly covering the properties of the electromagnetic wave. So we'll talk about Maxwell equation and try to figure out or get an idea that how do we reach up to Maxwell equation and what are their physical significance. Then we'll see that how we can write wave equation for electromagnetic wave, whether it is in vacuum or conducting medium or non-conducting medium, because it is not always necessary that wave will propagate through the vacuum only. So it can propagate through conducting medium on its surface. So there are many possibilities. So we'll try to get some idea about that. Then about energy and momentum, which are the essential aspect of its discussion, that how we can represent energy and momentum of the electromagnetic wave. And then how to deal with the situation when electromagnetic wave move from one medium to another. So what type of reflection and transmission take place. So we'll try to understand this. Okay, and whatever I'm talking about electromagnetic wave, whether it is mathematical stuff or this physics aspect, I'm only referring to one book, that is Introduction to Electrodynamics by David J. Griffith. But you are free to take either of the book. There are many books related to electrodynamics. So you can choose either of them, whatever you feel comfortable. Because in this book, language can be slightly difficult, not that much, but this book is really nice. If you put slightly bigger effort, then you can get it. Okay, so in this discussion or in this set of slides, I shared 3 sets of slides. One was for the mathematical concept, and this one which is for the Maxwell's equation, and the next one will be dedicated to the electromagnetic wave. So the assignment which I gave you at the moment, it is related to these two. First one mathematical tool, and second which you have to cover any assignment which will come across related to Maxwell equation. So you have to do that part by Saturday. Okay, so I'm sure you have read about Maxwell equation, not in much detail, but you have idea about that what are the Maxwell equation. So these are actually 4 equations which represent the basic laws of the electric and magnetic field, whether it is static electric field, whether it is static magnetic field, or dynamic field. So these 4 equations are originating from fundamental laws related to static or dynamic field. So one is the Gauss law in electric field. So we'll see different formulation of this Gauss law and how do we reach up to this equation. So in this Gauss law, what do we have? We have divergence of the electric field. This is equivalent to the, or this depends on the charge density. Of course, we have some constant as well, which is permittivity, but main dependence comes on the charge density. It can be linear charge density, surface or volume. It can be anything. And this basically represents the flux. So this divergence of the electric field. So second equation is the Gauss law for magnetostatic. This was for the Gauss law for electrostatic. And the second Maxwell equation constitutes of the Gauss law in magnetostatic, which state that divergence of the magnetic field is always 0. And what does it imply? That monopole never exists. We can have positive charge separately, negative charge separately. It is not always required कि positive or negative charge हमेशा साथ हो. But for the magnetic field, we have different situation that North Pole and South Pole always exist in pair. So far, we had not find any evidence of the monopole existence, whether it is at molecular level or it is at the macroscopic level. There is no evidence yet. Third equation, which comes under Maxwell's equation, is the Faraday's law. And it talks about that what will be the variation of, or if you have to calculate curl of the electric field, then this directly varies with the rate of change of magnetic field.
Okay, and fourth equation which we have, that is Ampere's law, this with correction. We'll talk about this stuff at later stage. In this equation we have curl of the magnetic field. So आप ये देख सकते हो कि दो इक्वेशन में हम डाइवर्जेंस की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की, एंड इन लास्ट टू इक्वेशन वी आर टॉकिंग अबाउट कर्ल ऑफ द फील्ड. जो फर्स्ट टू इक्वेशन है वो एक तरह से स्टैटिक फील्ड के लिए रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पर जो भी फील्ड है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन दैट और डज नॉट वेरी विद द टाइम. बट जो लास्ट टू इक्वेशन है, in these case we have the variation of the field, like in Faraday's law we have variation of the magnetic field, and in Ampere's law we have variation of the electric field. Okay, this is the general idea about the Maxwell equation, but let us see that how these equations come across, that what are the, I'm saying that this is Gauss law, but mathematically or when we are introduced to Gauss law it is slightly different. Faraday is slightly different. So we'll try to figure it out कि जो हम बेसिक डेफिनेशन पढ़ते रहे हैं उनसे हम इन इक्वेशन पे किस तरह से पहुंचते हैं. Okay, so that will be the main objective or target for discussion in this slide. Okay, let us go one by one. So this point is not necessary to mention, but just for the completeness, if you know these four equations and if you have this equation in your hand, then you can explain each and every concept of the electric and magnetic field, whether it is static, whether it is dynamic, whether it is electromagnetic wave where both electric and magnetic field are present. You pick either of the concept related to electric and magnetic field. These four equations are mostly able to explain those effects. So therefore these are heart of the electromagnetic theory. Okay, so let us go one by one. So the basic concept which we discuss is Coulomb's law, right? कि इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे पहले कूलम्स लॉ ही आता है कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स कैसे निकालते हैं. सो वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस, स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू. कुछ बुक में Q1 Q2 भी लिखा हो सकता है, बट दैट इज नॉट ए बिग डील. एक का पोजीशन वेक्टर r1 है, सेकंड वन इज विद द r2 पोजीशन वेक्टर, सो यू कैन कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर by using this position vector, which will be vector addition of these two. Okay, so we are aware that we can calculate force between these two charges by this formulation, where we have some constant term 1 by 4 pi epsilon naught and product of two charges and inversely vary with the r square. And this r is the unit vector. What does it represent? It represents this direction. कि जिन चार्जेस के बीच में आपको फोर्स निकालना है उनके बीच में जो डायरेक्शन है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस r यूनिट वेक्टर. ओके, सो दिस इज कूलम्स लॉ. सो डिफरेंट टर्म आपको पता है, q सोर्स चार्ज है जिसकी वजह से आपको फोर्स निकालना है, जिस पे फोर्स निकालना है. कैपिटल Q को हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं. r magnitude has separation vector का, r is the unit, r hat is the unit vector. This epsilon naught, this is the permittivity of the free space. अगर कोई मीडियम आएगा तो डेफिनेटली ये चीज चेंज हो जाएगी, बट अभी हम फ्री स्पेस से ही स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, सो ये हमारा बेसिक लॉ है. जब भी आपके पास सिस्टम ऑफ चार्जेस है तो अगर आपको ये पता है, आप इजिली फिगर आउट कर सकते हो कि चार्जेस की मोशन कैसे रहेगी. तो अगर आपके पास सिर्फ दो ही चार्ज है तब तो कोई इश्यू ही नहीं है, राइट, कि ये फॉर्मूला लग जाएगा. अगर मल्टीपल चार्जेस है और आपको किसी एक चार्ज पर रिजल्टिंग फोर्स निकालना है तो हम क्या यूज करते हैं? वी यूज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. सो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सप्लेन करनी है तो उसमें हम दो ही कॉन्सेप्ट मेनली यूज करते हैं. जो बेसिक कॉन्सेप्ट है दो ही है हमारे, आगे वाले कॉन्सेप्ट उनसे ड्राइव होते हैं फर्दर. वन इज द कूलम्स लॉ, सेकंड वन इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. अगर इन दोनों को आप करेक्टली यूज कर पाते हो देन यू कैन एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द स्टफ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक. सो अगर आपके पास सिस्टम है, यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं था जब हम फोर्स की बात करते हैं. एक इसमें फर्दर कॉन्सेप्ट यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का. इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिफाइन कैसे करते हैं? दैट अगर हम
फोर्स निकाल रहे थे दो चार्जेस के बीच में, तो इस फोर्स को हम कैपिटल Q मल्टीप्लाई विद द क्वांटिटी which is this term basically other than this capital Q. This is called electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसे कह सकते हो कि अगर आपने कोई भी चार्ज रखा है उसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम अगर उसे डिफाइन करना है तो हम कर सकते हैं कि आपको यूनिट चार्ज लेके आइए उसके पास में, एंड उस यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है दैट इज इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो अगर कॉन्सेप्चुअली देखना है तो आप ये कह सकते हो कि उसका एक तरह से इन्फ्लुएंस एरिया है ये. जैसे किसी पर्सन का भी एक सॉर्ट ऑफ ऑरा या इन्फ्लुएंस कह सकते हो होता है, राइट. दैट विल बी गिवन बाय समेशन ऑफ वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, या जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड है Q1 से लेके Qn तक जितने भी इलेक्ट्रिक चार्जेस थे सबकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दीजिए, एंड दैट टू टेक देयर वेक्टर सम दैट विल गिव अस द रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्पेसिफिक पॉइंट. तो यहाँ पर ये जो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं वो एक तरह से समेशन ही है. तो ये तो हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, Q भी स्केलर क्वांटिटी, इट्स फाइन. Ri स्क्वायर भी स्केलर है, बट ये Ri यूनिट वेक्टर जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है. तो हम क्या करेंगे, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टरली ऐड करेंगे और उससे हमें रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी. तो ये चीज भी हम डिस्कस करते हैं, बट जस्ट फॉर द कंप्लीटनेस वी आर टॉकिंग अबाउट. लेकिन यूजली डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम होता नहीं है. सिंगल चार्ज की बात करें बहुत रेयर है. यूजली क्या होता है, चार्ज या तो किसी वायर पे डिस्ट्रीब्यूट होता है या किसी मेटेलिक सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा या वायर की सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, या हमारे पास वॉल्यूम होगा कंप्लीट. यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम काफी रेयर है, बट उसकी जगह हमारे पास कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम होता है. तो रियल सिचुएशन में हम जाएंगे, देन विल हैव द कंटिन्यूअस सिस्टम, और उस केस में ये जो समेशन है वो इंटीग्रेशन से रिप्लेस हो जाएगी, क्योंकि इंटीग्रेशन और समेशन ऑलमोस्ट सेम चीज ही है. जब हम डिस्क्रीट सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पे हम समेशन कर देते हैं, सम अप कर देते हैं, और जब कंटिन्यूअस सिस्टम होता है इन दैट केस वी हैव द इंटीग्रेशन. तो जब भी हमारे पास कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इन दैट केस द फॉर्मुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बी गिवन बाय दिस क्वांटिटी. चेंज क्या हुआ है, सिर्फ चार्ज की जगह डी क्यू आ गई, क्योंकि अब हम पहले क्या करेंगे, स्मॉल चार्ज एलिमेंट लेंगे और फिर उसको हम कंप्लीट चार्ज एलिमेंट पे इंटीग्रेट कर देंगे. मान लीजिए वायर के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था, तो हम पहले क्या करेंगे, वायर का एक छोटा सा पार्ट लिए, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, और उसके बाद हम एक तरह से कंप्लीट वायर पे निकालने के लिए उसका हमें इंटीग्रेशन करना है. सिमिलरली किसी सरफेस पे निकालना है तो आप सेम वैसे कर सकते हो. तो ये जो डी क्यू है, जो हम यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज लिख रहे हैं, दिस कैन बी गिवन बाय लैम्डा इंटू डी एक्स इन केस ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी. लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है उसको लेंथ एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, विल गेट द चार्ज वैल्यू. अगर सरफेस या एरिया चार्ज डेंसिटी है
उस केस में जो चार्ज एलिमेंट है दिस विल बी गिवन बाय सिग्मा इनटू डी ए, और जब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है उस केस में जो स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज है दिस विल बी प्रोडक्ट ऑफ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो एंड स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट। तो ये बेसिक फीचर्स है इंटीग्रेशन की। हम एक स्मॉल एलिमेंट लेके चलते हैं, देन इंटीग्रेशन का मतलब है कि उसको कंप्लीट पे एक्सपेंड करना, यानी सभी छोटे छोटे कंपोनेंट पे वैल्यू निकाल के उनको सम अप करना। सो दिस विल बी द फॉर्मुलेशन इन केस ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीजें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सो ये फॉर्मूला कैसे लिखा है कि जो हमने ये डी क्यू था इसको रिप्लेस कर दिया लैम्डा डी एल से। ओके, तो लैम्डा तो वॉल्यूम लीनियर चार्ज डेंसिटी है, डीएल क्या है, डीएल हमारा लेंथ एलिमेंट है कि जो हम स्मॉल एलिमेंट लेंगे लेंथ का दैट इज डीएल प्राइम। सिमिलरली आप सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज के लिए फॉर्मुलेशन लिख सकते हो। बस चेंज क्या होगा कि हमारे पास एरिया एलिमेंट आ जाएगा, वॉल्यूम एलिमेंट आ जाएगा इंस्टेड ऑफ दिस लेंथ एलिमेंट। ओके, तो ये हमारी डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की इन केस ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, whether it is linearly distributed or distributed on a surface or we have a complete volume of the charge. ओके, सो ये बेसिक डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। हम बात कर रहे थे अब यहाँ से मैक्सवेल इक्वेशन कैसे पहुँचते हैं। सो लेट अस पिक दिस फॉर्मुलेशन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, बट उससे पहले जरूरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पता हो जो यूज होगा। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मीनिंग आपको पता है, आई थिंक देयर इज सम बीच में कोई पॉइंट मिस हो जाए आपको क्लियर ना प्लीज डोंट हेजिटेट। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मीनिंग क्या है कि किसी पार्टिकुलर एरिया में से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रहा है दैट इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स। या जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है वो, और ऑफ कोर्स ये डिपेंड करेगा कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है और इस पे डिपेंड करेगा कि एरिया कितना है। अगर एरिया छोटा हुआ तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन क्रॉसेस करेगी, अगर एरिया हमने ज्यादा बड़ा ले लिया तो लाइन ज्यादा क्रॉस करेगी। तो डायरेक्टली डिपेंडेंस है। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे। अगर नहीं फॉर्मूला पढ़ा तो यू कैन जस्ट रिमेम्बर इट, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई एंड आर यूनिट वेक्टर। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में हमारे पास आर थीटा और फाई जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम का काम करते हैं सॉर्ट ऑफ। तो उस केस में जो एरिया एलिमेंट है डी ए वेक्टर, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और जब कभी भी क्लोज सरफेस होगी
उस केस में इनकी जो वैल्यू है वो ये रेंज करती है। थीटा की वैल्यू 0 to पाई जाती है और फाई की वैल्यू 0 to 2 पाई जाती है। ओके, अगर भूल चुके हो तो रिवाइज कर लेना इनको, बट अपने केस में इतना ही है कि इनका मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि वॉल्यूम एलिमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, एरिया एलिमेंट को कैसे लिख सकते हैं, और जो लिमिट है डिफरेंट कोऑर्डिनेट की वो क्या रन होती है। जैसे यहाँ पर हम क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं, तो क्लोज सरफेस के लिए थीटा कहाँ से कहाँ रेंज करेगा, फाई कहाँ से कहाँ रेंज करेगा, आर तो कांस्टेंट ही है, उसमें इश्यू नहीं है। ओके, तो अगर हम ये फॉर्मुलेशन यूज करते हैं तो ये जो इंटीग्रेशन था हमारा फ्लक्स के लिए, इसको हम डबल इंटीग्रेशन की तरह लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक डी थीटा भी है और डी फाई भी है। तो कंप्लीट क्लोज सरफेस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो कोऑर्डिनेट के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो ये फॉर्मुलेशन तो सेम था। ये डी एलिमेंट हमने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट से पिक कर लिया, तो इट्स फाइन, आर हेड वेक्टर चला जाएगा। वी लेफ्ट विद इसकी इंटीग्रेशन को सोल्व करना। डबल इंटीग्रेशन है, पहले थीटा के लिए कर लो या फाई के लिए कर लो, आपकी चॉइस है। और लिमिट आपको ये पुट करनी है, थीटा के लिए 0 to पाई और फाई के लिए 0 to 2 पाई। तो जब आप ये इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे यू विल गेट कि जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है, दिस विल बी सिंपलर वन, दिस इज स्ट्रेट फॉर पाई बाई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहाँ तक तो ठीक है, अच्छा फॉर्मूला आ गया हमारे पास। लेकिन अभी तक मैक्सवेल इक्वेशन नहीं बनी पहले वाली ना, तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। दिस इज गॉस लॉ, दैट इज ओके, कि हम क्यू टोटल चार्ज है, क्यू को हम ये भी लिख सकते हैं, राइट। व्हाट इज दिस? दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्योंकि क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं, तो ये जो सरफेस है कुछ वॉल्यूम एलिमेंट को इनक्लोज करेगा ना, और उस वॉल्यूम के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पता है, और फिर हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट लेके इंटीग्रेशन कर सकते हैं, दैट विल गिव अस द टोटल चार्ज। तो ये जो रिप्लेसमेंट है ये हमारी यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। अब हम एक तरह से ट्राई क्या कर रहे हैं, एक तो ऐसे समझ लीजिए कि मैक्सवेल इक्वेशन में जा रहे हैं। दूसरा, इस प्रोसेस के दौरान हम करना क्या चाह रहे हैं कि जो इंटीग्रेशन वाली टर्म थी उसको हटा देना चाह रहे हैं। इंटीग्रेशन की, या ये कह लीजिए कि ये जो हमने गॉस लॉ बनाया ये इंटीग्रल फॉर्म में है, क्योंकि हमारा जो डेफिनेशन है वो इंटीग्रेशन की टर्म में आ रहा है। हम जा रहे हैं मैक्सवेल इक्वेशन की तरफ जहां पर ये गॉस लॉ डिफरेंशियल फॉर्म में हो। तो जो मैक्सवेल इक्वेशन हम डिस्कस कर रहे हैं वहां पे कहीं इंटीग्रेशन नहीं होता, मोस्टली डिफरेंशियल है। लेकिन जब हम बेसिक लॉज पढ़ते हैं वो इंटीग्रल की टर्म में आता है। तो ये जो गॉस लॉ हमने पढ़ा ये इंटीग्रल फॉर्म है उसकी। अब हम स्लोली उसको डिफरेंशियल फॉर्म या मैक्सवेल इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पहले हमने राइट हैंड साइड में जो चार्ज था इसको इंटीग्रल की टर्म में कन्वर्ट कर दिया यूजिंग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डेफिनेशन। बट अभी कैंसिल आउट हो नहीं रहा, कुछ फर्दर एक्शन करना पड़ेगा इस पे। वी विल बी यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम। जिन्होंने क्लास नहीं लगाई या जो नहीं पढ़े वो एक बार रीड कर लेना कल का लेक्चर। डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करके हम एरिया इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली एक स्टोक्स थ्योरम भी होती है जो आगे यूज होगी, तो ये थ्योरम्स आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। तो अगर हम डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करते हैं उस केस में जो ये इंटीग्रेशन है जो हमारा चलता आ रहा है, जो फ्लक्स का फॉर्मूलेशन है, उसको हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए वॉल्यूम कैन बी इक्वल टू फ्लक्स और दिस इंटीग्रेशन। तो अगर हम ये रिलेशन यूज करेंगे तो प्रीवियस आइडेंटिटी क्या बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये बन गई विद डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद वॉल्यूम इंटीग्रल। राइट हैंड साइड में क्या है, वी हैव वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो दोनों तरफ ही वॉल्यूम इंटीग्रल है, तो इसका मतलब कैंसिल आउट हो गया। अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन सेम वे से कर रहे हैं तो इंटीग्रेंट सेम हो जाएंगे ना। तो व्हाट डज इट इंप्लाई कि डाइवर्जेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज आवर फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन, या आप कह सकते हो कि दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ।
पिछली इक्वेशन क्या थी? दैट वाज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, एंड दिस इज फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन और गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म. देयर आर डिफरेंट नेमिंग फॉर दिस. ओके, तो इसका पर्पस था कि आपको ये कन्विंस करना कि ये जो भी हम मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ रहे हैं ये कहीं हवा से नहीं आ रही. जो भी हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के, उन्हीं की मैथमेटिकल फॉर्म हमने मैनिपुलेट किया. दैट्स ऑल. क्योंकि डिफरेंशियल फॉर्म को यूज करना रिलेटिवली इजी होता है, सो दे आर वर्किंग टू ब्रिंग ऑल द कॉन्सेप्ट इन डिफरेंशियल फॉर्म. ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. Any question related to this discussion? Okay, if not, then let us continue. उसके बाद हम कर्ल की बात कर रहे हैं, डाइवर्जेंस वाले की बात नहीं कर रहे. जो हमने लिस्ट की थी उसमें थर्ड इक्वेशन है ये. तो इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम सेम ही डेफिनेशन रख लेते हैं. पहले हम डिस्कस करते रहे कि दिस कैन बी गिवन एज लाइक दिस फॉर ए पॉइंट चार्ज क्यू. तो अगर हमें लाइन इंटीग्रल निकालना है, जैसे हमने यहाँ पे एक सिचुएशन कंसीडर किया है कि वी आर मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. सो हमने चूज क्या किया कि ए से बी तक जाने के लिए जो रास्ता पिक किया उसको हमने पाथ 1 पिक कर लिया, या जो ब्लू कर्व है वो पिक कर लिया. और जब हम बी से ए वापस आएंगे उस टाइम हम एक पाथ पिक कर लेते हैं, पाथ 2, जो हमने रेड लाइन से रिप्रेजेंट किया, यानी दोनों अलग अलग पाथ पिक कर लिए. तो अगर हमें लाइन इंटीग्रल सोल्व करना हो तो उसके लिए पहले ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में लिखना पड़ेगा that this length element can be written as like this कि dr into r hat r d theta theta hat r sin theta d phi phi hat. ओके, तो ये हमारे लेंथ एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन है इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट. तो अगर ये फॉर्मुलेशन हम इसके साथ यूज करें और ये इंटीग्रेशन सोल्व करें तो फॉर्मुलेशन क्या बनेगी? दैट यू कैन सोल्व कि ईडीएल हमें निकालना था ना, अगर ये इंटीग्रेशन सोल्व करना है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और लेंथ एलिमेंट का डॉट प्रोडक्ट है. तो रिजल्ट क्या आएगा? ये चीजें तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, है ना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई होता है, तो है ना, ये इसके साथ कैंसिल आउट होके मल्टीप्लाई होगा. वी लेफ्ट विद दिस इंटीग्रेशन ओनली. तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ ये इंटीग्रेशन आएगा. जो थीटा हैट और फाई हैट का कंट्रीब्यूशन है ये 0 है, यानी डॉट प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है. तो हमारे पास इंटीग्रेशन अब क्या रह गई? ये चीजें तो कांस्टेंट है, ये सारी चीज कांस्टेंट है, सिर्फ डी आर बाई आर स्क्वायर आएगा. तो बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है ये तो, है ना. इसका आंसर क्या आएगा? 1/r बन जाएगा. तो जब आप इसको सोल्व करोगे यू कैन राइट दिस इंटीग्रेशन एज q/4πε0, जो कि कांस्टेंट था, और इंटीग्रेशन की वैल्यू 1/r होगी. उसमें आप लिमिट पुट करोगे तो 1/ra माइनस 1/rb बन जाएगा. ये आने का रीजन क्या है? क्योंकि हम dr/r² का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लिमिट हमारी a से b तक है. ओके, तो ये हमारा क्या रिजल्ट दे रहा है कि जब हम पाथ a के थ्रू a से b की तरफ मूव कर रहे हैं, जब हम b से a की तरफ मूव करेंगे तो क्या आंसर आएगा? अगर हम सेम वे से इंटीग्रेशन निकालें, इस क्वांटिटी का लाइन इंटीग्रल निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्रॉम b टू a वाया पाथ 2, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी? एनीवन क्विक आइडिया? ऊपर वाले डिस्कशन से कुछ आइडिया लग रहा है? रिपीट करो बच्चे, क्लियर नहीं थे आपकी वॉइस. सर माइनस हो जाएगा, ऊपर वाले आर भी माइनस. यस सर. अच्छा, कोई और? एनीवन एल्स? ओके, सारे स्टेप फॉलो करना ये ऊपर वाले, एंड यू विल फिगर इट आउट कि इट विल कम आउट टू बी सिमिलर बट विद ए नेगेटिव साइन, जो भी आपके फ्रेंड ने बताया.
उसका रीजन ऑब्वियस है, क्योंकि लिमिट की डायरेक्शन बदल गया, पहले ए से बी था, अब बी से ए है। इंटीग्रेंट तो सेम ही है ना, सिर्फ लिमिट चेंज हुआ है, तो विल गेट ए सेम वैल्यू बट विद द नेगेटिव साइन। तो अब क्लोज्ड सरफेस के लिए, क्लोज्ड लूप के लिए कितना बनेगा इंटीग्रेशन? मान लीजिए लाइन इंटीग्रल था इलेक्ट्रिक फील्ड का, ए से बी के लिए निकाल लिया हमने, फिर बी से ए पर वापस आ गए, तो इस पूरे पाथ के दौरान इंटीग्रेशन कितना हुआ? जीरो जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों को ऐड कर सकते हैं ना, और ये ऑब्वियस ही चीज है कि नेगेटिव साइन के साथ है, सो विल गेट ए जीरो क्वांटिटी। वो हमने ऊपर सोल्व नहीं किया अभी, इट्स फाइन, वो जीरो आएगा, बट इसको कंसीडर कर लेते हैं पहले। जो हमारी लेफ्ट साइड बनेगी, लेफ्ट साइड क्या थी? क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल। जब हम दोनों को सम अप कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने जो कन्वर्शन किया है, फर्स्ट, ये अगर फर्स्ट पार्ट है तो ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट से सेकंड में जाने के लिए हमने जो थ्योरम यूज किया, दैट इज स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम में हम क्या करते हैं कि लाइन इंटीग्रल को एरिया इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लाइन इंटीग्रल था, इसको हमने एरिया इंटीग्रल की टर्म में लिख लिया फ्रॉम स्टोक्स थ्योरम, और राइट हैंड साइड क्या होगा? वो तो जीरो हो गया। So we'll get that line integral of the closed curve is zero. This implies del क्रॉस c का जो सरफेस इंटीग्रल है वो भी जीरो है। तो ये कब पॉसिबल है? जब हमारी ये क्वांटिटी जीरो हो। डेल क्रॉस c अगर जीरो है, उसी केस में हमारी ये आइडेंटिटी होल्ड करेगी। अगर मान लीजिए एरिया एलिमेंट जीरो है, फिर तो वैसे ही नहीं सेंस बनती, इसका मतलब जो इंटीग्रेंट है वो जीरो है। सो दिस इंप्लाइज डेल क्रॉस ई इज जीरो, कर्ल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। बट ये तो कोई मैक्सवेल इक्वेशन बनी नहीं है ना, कोई बात नहीं बनी तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट है जो हम आगे यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? इरोटेशनल हुआ। ये कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर किसी भी फील्ड का कर्ल जीरो है, उसका मीनिंग क्या होता है कि वो फील्ड जो है वो कर्ललेस है या इरोटेशनल है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, वो हम यूज करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो यहाँ से हमारे दो चीज क्लियर हो जाती है कि डाइवर्जेंस इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर निकालते हैं तो क्या सिचुएशन आ रही है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल निकालते हैं तो क्या सिचुएशन है। बट ये सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन नहीं है अभी हमारी, बट वैलिड फिजिक्स लॉ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से एक चीज क्लियर है पीछे वाले फैक्ट से कि कोई भी फील्ड अगर इरोटेशनल या कर्ललेस होता है, तो उस केस में हम उसको एक स्केलर पोटेंशियल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करते हैं ना, तो वही स्टेटमेंट है एक तरह से कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक पोटेंशियल एसोसिएटेड होता है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होता है। कोई भी फील्ड अगर कर्ललेस या इरोटेशनल होगा तो उसके साथ एक पोटेंशियल एसोसिएटेड होगा, डेफिनेटली स्केलर पोटेंशियल एसोसिएटेड होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे वहां पे डिफरेंट टर्म आएगी। तो ये कर्ल के लिए हो जाता है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। अभी ये वाली इसके कोरस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन थी ना, उसको वो भी ड्राइव करनी है हमने, वहां पहुंचे नहीं है, बट उससे पहले मैग्नेटिक फील्ड की बात करना जरूरी है, तब हमको बेटर अप्रिशिएट कर सकते हैं कि क्या सिचुएशन है। आई थिंक इसको यहीं स्टॉप करना चाहिए, अदरवाइज काफी हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप ये दोनों इक्वेशन अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो कि किस तरह से चीजें मूव कर रही है, और अगर कल वाला लेक्चर नहीं पढ़ा आपने तो उसको रीड कर लें, अदरवाइज ये होगा कि काफी चीजें आपकी पाइल अप हो जाएगी। सो अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका, देन लेट मी सी कि हम यहाँ पे कितना कॉन्सेप्ट रहेगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है दैट विल बी कवर्ड इन योर माइनर एज वेल। सो आई थिंक वी विल मैनेज इन 3 लेक्चर, कोई इशू नहीं, हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड आपका कोई डाउट हो जो अब तक हमने रीड किया? ओके, ठीक है। सो
कीप इन माइंड कि जो माइनर 1 का सिलेबस है वो आपका ये जो मैक्सवेल इक्वेशन वाला यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं ये कंप्लीट होगा। फर्स्ट सेक्शन जो कंप्लीट किया है ये मैथमेटिकल स्टफ, और ये जो मैक्सवेल इक्वेशन की बात कर रहे हैं यहाँ तक आपका कंप्लीट सिलेबस रहेगा। Okay. So अगर कोई फर्दर क्वेश्चन नहीं है so we can close for today and we'll meet in the afternoon and next theory class.